challenges made you feel that you are a makeup artist? यस तो मेरा ये बोलना है उन वुमेन्स को, या फिर कुछ भी ऐसा लाइफ में होता है, सो डोंट गो फॉर इजी वे, राइट, जस्ट पुश योरसेल्फ और एक रिस्क उठाओ. Hello everyone, very good evening. I'm Gagan Makin from DIDM, Delhi Institute of Digital Marketing, and we have with us Neha, and she came specially from Mumbai, especially for this event, Women's Empowerment. We want to showcase few of success story with you, and we have Neha with us. So we really want to, we are very thankful to you. You came specially from Mumbai, and you wanted to share your journey with a lot of women, those who are planning to grow in their career. So please नेहा जी बताइए आप. Like about me, I am Neha Dipesh Bhan. Right. Yes, and yes, I came here for special. For some people knows me like about my journey from starting. आज maybe they'll get to know. Right. And yes, तक चीज पहुंचे. This is our objective, right? Yes, yes. लोगों को पता लगे कि what was your journey exactly and कैसे आपने उसको overcome करके grow किया and you reached to this level कि you have your YouTube channel now and you're growing very well in your career. So please बताइए अपनी journey के बारे में. Okay. So like मेरी लाइफ में स्ट्रगल्स थोड़े से ज़्यादा ही रहे हैं स्टार्टिंग से, अगर मैं कहूँ. हाँ जी. तो अभी like after getting married and then बॉम्बे में जाना और वहाँ पे लाइक बॉम्बे में एडजस्ट ही मैं कर रही थी कुछ चीज़ अपनी. एक नई सिटी था, नया एनवायरनमेंट. तो अब दिल्ली से मैं कभी भी बाहर नहीं गई थी. That you're local from Delhi and after marriage you got shifted to Mumbai. So it was like totally new city, नई जगह, नए challenges और cope up करना and being a North Indian Delhi culture से अब मुंबई move करना. Yeah, that was very difficult. Very difficult. Actually, right, still I'm also just trying to be comfortable there. हाँ जी, हाँ जी. अब उसके बाद then बॉम्बे में मैं एडजस्ट कर ही रही थी. Like after some time this like after my husband, so that is little difficult for me. अच्छा. तो we really apologize to hear this. So काफी डिफिकल्ट हुआ आपको दोबारा कॉप अप करने में, दोबारा अपने आप को स्टेबल करने में और इस लेवल तक पहुंचने में. तो जर्नी बहुत जिगजैग रही, आप यही कहना चाहेंगे, राइट? हाँ, बहुत ज्यादा जिगजैग रही. बट मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी जो मेरी जैसे if we'll try and if like be focused. So every problem has a solution. Yes. So you are a real example for everyone. जो अपने आप को बाउंड फील करते हैं कि what to do, when to do, how to do. तो वो चीज के लिए आप रियल एग्जाम्पल हो कि हर जगह कोई ना कोई एक किक मिलती है आपको करियर लॉन्च करने के लिए दोबारा से और ग्रो करने के लिए. सो कैसा लगा कब when you that felt कि you are a makeup artist, कभी आपको फील आई कि मुझे अब actually before marriage I was in makeup industry, right, but after got married तो वो मेरा बिल्कुल ही change हो गया था. Like kind of I was completely housewife, right, baby हो गया था, then corona आ गया था, तो सारी चीजें मेरे साथ तभी हो गई थी. So corona time period में feel आई कि नहीं I can be a makeup artist या पहले से ही था? पहले से ही था, but after this like अभी मेरे को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा like for my baby, right. तो मैंने मेकअप आर्टिस्ट का चूज किया ऑप्शन दैट बिकॉज़ आई जस्ट वांट टू बी इन मुंबई. हिडन टैलेंट आगे आया कि हाँ इसको हम और एप्रोप्रिएट में लॉन्च कर सकते हैं. So those challenges made you feel कि that you are a makeup artist. Yes. कह सकते हैं हम ऐसा? We can say that. Or I am living in Bombay, so I want to be in a Bombay only. So I don't want to be in that typical job like 9 to 6 वाला. हाँ जी. Although I have that option, वो option भी है. सबके पास होता है, right? हाँ, you get that option. Yes. तो अभी बॉम्बे में रहना है तो कुछ इंडस्ट्री से रिलेटेड ही करना होगा, राइट? तो लाइक मेकअप आर्टिस्ट ही एक अच्छा प्रोफेशन लगा आपको एंड जो आपको लगता था कि इट इज अ हिडन स्किल सेट इन यू, गॉड गिफ्टेड स्किल सेट, उसको आपने पॉलिश करके अब डिजिटली लॉन्च करा. सो YouTube से अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है आपको? यू डू YouTube वीडियोस आल्सो? Yes. I can say like I am learning as of now, right? Like how I can send my message to the other women. Right. So अभी मैं इसमें YouTube में चैनल वीडियोस में बना तो रही हूँ and yes धीरे-धीरे वो होगा. आप मैसेज कन्वे कर रहे हो लोगों को कि मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म ने एक हेल्प आउट सबके लिए किया कि जो अपने घर से कुछ अपने हिडन टैलेंट को लॉन्च करना चाहते हैं. इज द इजीएस्ट प्लेटफॉर्म
Yes. और वुमेन्स लाइक यू, वुमेन्स जो अभी घर पर रहते हैं, काम नहीं कर पा रहे होते और जो सबैटिकल में होते हैं, तो उनके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है Yes. कि वो अपने हिडन टैलेंट को या स्किल सेट को वर्चुअली लॉन्च करें और ग्रो करें, Yes, जैसे आप कर रहे हो अभी। यस यस डिजिटल, एग्जैक्टली मैंने डिजिटल का कोर्स किया था एंड आई डोंट नो कि ये इस तरीके से मेरे को भी काम आएगा एज अ मेकअप आर्टिस्ट और एज अ यूट्यूबर। Right. सब कुछ वो डिजिटली काम होता है, लाइक एवरीथिंग, लाइक मेकिंग अ थंबनेल और एवरीथिंग लाइक डिजिटली। सो दैट जो स्किल मैंने लर्न किया था वो अभी मुझे काफी काम सो ये लाइफ टाइम स्किल सेट हो गया यूटिलाइजेशन के लिए कि आप उसको कहीं पर भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी लाइफ में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एनीथिंग लाइक एनीथिंग। सो अभी आपको क्या लग रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहे हो, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके लिए? कुछ जर्नी प्लानर क्रिएट किया अभी आपने? कुछ जर्नी मैं इस तरीके से ही प्लान कर रही हूँ कि लाइक एज अ प्रोफेशनल आई वांट टू be continue as a makeup artist, professional or makeup by artist. interest I want to be a YouTuber as YouTuber. So we really want to say all the best for your career. Yes. और आप we will be very happy, we'll be very feeling very proud the moment you're gonna feel top of the world. You're a well-renowned YouTuber very soon. And अभी कैसा चल रहा है आपका, मतलब जो प्लानर है, अगर हम बात करते हैं कि अभी आपका एक प्लान है कि मेरे को प्रोफेशनल डिजिटल मेकअप आर्टिस्ट लॉन्च करना है, यूट्यूबर बनना है, तो उसके लिए कुछ ब्लूप्रिंट्स रेडी किए, कुछ डायरेक्शन प्लान करी, जो मतलब आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि आप जो प्लान कर रहे हो नेक्स्ट 2 or 3 years के लिए, यू शुड एक्सप्रेस इन फ्रंट ऑफ अदर वुमेन्स कि वो अपने ना ड्रीम्स को बाउंड ना करें। अगर आप मैं कर सकते हैं तो सभी कर सकते हैं, राइट? तो दे डोंट बाउंड देयर सेल्फ एंड डिजिटल टच मिलता है तो अपॉर्चुनिटीज वाइडर रेंज में हो जाती हैं। तो आपका मानना है कि मैं एक यूट्यूब से यूट्यूबर बनना चाहती हूँ, यूट्यूब चैनल से वायरल यूट्यूबर, एंड सेल्फ मेकअप से मैं मेकअप आर्टिस्ट बन गई प्रोफेशनल। तो कुछ आगे प्लान नेक्स्ट 5 years में आप कहाँ देख रहे हो अपने आप को, कि सो दैट पीपल कैन कंसीडर योर आइडियल वुमेन and people can consider you are the person to whom should they follow. yes, एक इन्फ्लुएंस होता है कि आप एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हो, yes, and we want कि लोग आपसे इन्फ्लुएंस हों, जिस zigzag लाइफ से आप निकलकर यहाँ तक पहुंचे हो। तो प्लीज बताइए मैम। ओके, ऑलराइट। सो पहले तो मैं अपना एग्जाम्पल ही लूंगी, लाइक जो मेरे साथ चीजें हुई है, मेरे जैसे बहुत लड़कियां जिनके साथ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है। तो ये जो लोग हमें फोर्स करते हैं ना फॉर अ रीमैरिज और समथिंग, और सडन ये डिसीजंस ले लेते हैं, सो मेरा ये बोलना है उन वुमेन्स को, या फिर कुछ भी ऐसा लाइफ में होता है, सो डोंट गो फॉर इजी वे, जस्ट पुश योरसेल्फ और एक रिस्क उठाओ। बेशक से वो अनकंफर्टेबल होगा तुम्हारे लिए, जो जोन में तुम कंफर्टेबल जोन में जाना चाह रहे हो, तो बहुत अनकंफर्टेबल होगा, बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन आई एम श्योर कि आप उस जर्नी से पार करके आप उस पे पहुंच जाओगे, अपना आपका जो गोल है उस जगह। सो जस्ट ट्राई वंस, और डेफिनेटली वो वे बनता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है खुद का। मतलब इंस्टेंटली कोई डिसीजन मत लो, सोच समझ कर, और अपने जो ड्रीम्स है उसके ऊपर भी फोकस करो। यस, कि जस्ट फॉर अ सेक कि नहीं प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, आगे कैसे मैनेज होगा, घर कैसे चलाना है, रीमैरिज कर लो, तो इंस्टेंटली कोई डिसीजन मत लो किसी के प्रेशर के ऊपर आकर, राइट? किसी से प्रेशराइज होकर। और कुछ आप प्लीज बताना चाहें करियर रिलेटेड? कुछ करियर रिलेटेड तो मेरा यही है कि हर किसी का में किसी ना कुछ टैलेंट जरूर होता है। तो आप नॉर्मल जो एक नॉर्मल तो नहीं कहूंगी, लाइक सारी जॉब एक तरीके से प्रीशियस ही होती है, उसमें जाने के अलावा अपना जो टैलेंट है उसको एक बार ट्राई करो, रिस्क लो। कहते हैं रिस्क अभी नहीं लिया तो कभी नहीं ले सकते, सो जस्ट अभी एक रिस्क तो लो एटलीस्ट, और फिर देखना आप जरूर। और एंड मेन थिंग बी फोकस्ड, क्योंकि फोकस से लाने वाले काफी मिलेंगे, काफी लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको बोलेंगे नहीं होगा, नहीं कर पाओगे, लाइक क्यों खामगा इतना प्रेशर लेना, लेकिन प्रेशर लो। डरो मत। इन वन वर्ड, डरो मत। और ये सोच के मत डरो कि मैं फीमेल हूँ, कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, मेरा बेबी है उसको कौन संभालेगा। एंड आई पर्सनली फील, विच यू हैव सीन मेरी लाइफ में भी, कि जो एक वुमेन का जो टैलेंट है वो कोई बॉयज का भी बीट नहीं कर सकते, बिकॉज द टाइम मैनेजमेंट जो आप यू आर ब्लेस्ड विद, एंड सिस्टम को मैनेज करना, वर्किंग लाइफ को, पर्सनल लाइफ को और फैमिली को, इतना इजी नहीं होता, जो वुमेन्स बहुत इजीली ओवरकम कर लेते हैं और मैनेज कर पाते हैं। तो इस डर से कि अभी आगे क्या होगा, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो इस डर से अपने आप को ना रोको, यही कहना चाह रहे हो आप, राइट? वेरी नाइस। सो अभी मुंबई में कितना टाइम हो गया आपको? मुंबई में मुझे अब तो अराउंड 5 years हो गए, ऑलमोस्ट 5 years हो, 6 years हो गए। अरे वेरी नाइस। तो अभी मुंबई में मुझे
लाइक अभी भी नहीं बोल सकती हाँ, लेकिन हाँ मैं ट्राई कर रही हूँ वहाँ पे एडजस्ट करने के लिए और Adjust हो करने जाऊंगी के लिए। स्लोली। हाँ एब्सोल्युटली, इतनी जल्दी आप एडजस्ट नहीं हो पाते। इवन अगर वो जॉब हो, करियर हो, कहीं पर भी आपको थोड़ा सा डिफिकल्टीज आती हैं, इवन इफ इट इज अ सिटी, या राइट। तो डिफिकल्टीज तो आती हैं। एंड पहले आपने कभी जॉब करी थी? यस, मैंने 7 to 10 ईयर जॉब किया है। वेरी नाइस। वो क्या बैकग्राउंड था बिफोर आपका? मैरिज किया है मैंने जॉब। वो तो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैं जॉब करती थी। वेरी नाइस। दैट वाज इन दिल्ली ओनली। तो कंटिन्यू रहा है मेरा उसमें जॉब। तो लाइक आफ्टर मैरिज मेरा हाउस वाइफ हो गया था, और हाउस वाइफ होना भी एक डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि वो भी बहुत डिफिकल्ट है वुमेन के लिए, जो बोलते हैं हाउस वाइफ को कुछ करनी है, बट दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट। हाँ, तो वही में हाउस वाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी 24 आवर्स रहती है, Yes. और जॉब भी होती है तो 9 आवर्स जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और 10 आवर्स होती है। तो मोस्ट डिफिकल्ट इज हाउस वाइफ। हाँ, Right. जॉब में एटलीस्ट हमें सैटरडे संडेज या फिर जो भी हॉलीडेज होता है मिल जाते हैं, बट पर्सनल लाइफ में नहीं, हाउस वाइफ में तो नहीं मिलते। हाउस वाइफ में कुछ भी नहीं। सो एक और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज होता है कि जैसे आपके पास वो सिचुएशंस आई जहाँ पे आपको डिसाइड करना था कि मैं प्रोफेशनली मेकअप आर्टिस्ट बनूं, अपनी हॉबीज को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊं और अपने आप को सेटल करूं मुंबई में, तो उस टाइम पे आपने जॉब का डिसीजन नहीं लिया, जो एक्सपीरियंस था उसके ऊपर भी आप नहीं गए? हाँ, उसके ऊपर मैं नहीं गई, क्योंकि मेरे को यही था कि अगर मैंने अभी भी नहीं ट्राई किया तो फिर मैं कभी बाद नहीं। में नहीं कर पाऊंगी। And this is जॉब the- तो ये है कि मैं मैं नेगेटिव नहीं जा रही हूँ, लाइक आई विल बी अ सक्सेसफुल इन दिस इंडस्ट्री ओनली एज अ Right. मेकअप और एज अ यूट्यूबर, बट स्टिल आप सक्सेसफुल तो वहां पे भी थे ना, आपने 7 इयर्स काम किया, सक्सेसफुल तो आप वहां पे भी थे, बट अभी Yeah. आपने अपनी हॉबीज की सुनी। अभी हाँ, मैंने हॉबीज का सुना। सो जॉब तो वी कैन डू लेटर आल्सो ना। एनी टाइम। सो तभी कहते हैं सूनर द बेटर। Yeah. जब आपके माइंड में क्लिक किया कि अब मुझे करना है, Yes. अब अपने प्रोफेशन को लिंक करना है अपनी हॉबीज के साथ, अपने टैलेंट के साथ, और एंड यू टुक दैट स्टैंड कि अब मेरे को करना है कुछ। हाँ, सो इट वुड बी अ वेरी रियल टाइम एग्जांपल फॉर लॉट ऑफ वुमेन्स जो कहीं ना कहीं अपने हॉबीज और अपने प्रोफेशन को मिक्स नहीं कर पाते और डरते हैं कि जॉब छोड़ दूंगी तो कैसे होएगा, हाँ। कर पाऊंगी या नहीं कर Yes, पाऊंगी। yes, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, Yeah. जस्ट दैट कि योर कंसंट्रेशन एंड डायरेक्शन हैज टू बी वेरी एप्रोप्रिएट और फोकस, Yeah. जो आपने वर्ड यूज Yeah, किया be focused, कि बी फोकस्ड, अगर वो हो तो फिर तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। हाँ, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस में कर लिया है अपना, कि बहुत लोग आते हैं तुम्हारा फोकस हटाने के लिए, तुम्हें अलग अलग एडवाइस देने के लिए। लाइक लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया था कि तुम दिल्ली शिफ्ट हो जाओ, कि दिल्ली विल बी मोर कंफर्टेबल फॉर यू, यहाँ पे अपने लोग हैं सारे, Family है यहाँ मुंबई पर। रहना बहुत डिफिकल्ट होगा। बट मैंने एक ही चीज बोला था अपनी फैमिली को, लाइक आई वांट टू बी इन दिस हाउस, मैं यहाँ से नहीं चाहूँगी। नहीं चाहूंगी। तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया है अपनी काफ़ी ज़्यादा, जैसे लाइक जो भी इंटरव्यूज हुए हैं Right. इन सब में भी, कि सौम्या टंडन लाइक एंजल की तरह मेरी लाइफ में आई थी। जो मैंने डिसीजन लिया, जो मैंने एक बिलीव किया, उस बिलीव को पूरा करने के लिए, तो सौम्या टंडन के थ्रू मेरी जो जर्नी है वो थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी। लाइक एंड व्यूअर्स को बताइए सौम्या टंडन कौन है? या सौम्या टंडन को तो सब लोग जानते हैं। जो नहीं जानते उनको भी बताइए। या शी इज एन एक्टर, जो भाभी जी घर पे सीरियल हाँ में जी। सौम्या टंडन जो एक एक्टर थे, अभी नहीं वो उसमें कर रही हैं, हाँ जी। बट वो पहले ही थी उसमें। तो उस समय शी वॉज विद यू, जिन्होंने आपको बहुत हेल्प किया और गाइड किया। हाँ, उन्होंने, और जो प्रोड्यूसर थे बाकी शो का, और बाकी जितने भी एक्टर्स वगैरह जो भी थे, मतलब राइट, हाँ, उन्होंने काफी सपोर्ट काफी किया support- आपको। support सो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर योर करियर, कि जहाँ पे आपको लगा कि अब इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। हाँ, अब इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो कैसे रही सपोर्ट सिस्टम फैमिली वाइज भी, इफ यू आर कंफर्टेबल टू शेयर? दैट इज गुड। या अच्छा, दैट इज तो पॉजिटिव था। पॉजिटिव। या हाँ, तो ये जानना भी लोगों के लिए जरूरी है कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी अगर हम ऐसा स्टैंड लेंगे, और अगर हम अपने प्रोफेशन को अपनी हॉबीज के साथ मिक्स करेंगे तो कहीं फैमिली ने मना कर दिया तो क्या होएगा। हाँ। तो मतलब देयर आर फैमिलीज हु आर ऑलवेज विद यू, राइट? तो दे आर वेरी कंसर्न्ड कि आप जो करना चाहते हो करो, डेडिकेटली करो, फोकस्ड होकर करो और ग्रो करो। या ग्रो करो, वो इंपॉर्टेंट है। यस, डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा, डिसीजन आपको खुद को लेना है। और क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज पर्सनालिटी होते हैं, एज आई एम सम टाइम। तो लेकिन डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, और फिर उसको आगे तो और डिसीजन कॉन्फिडेंस के साथ भी लेना होता है, और हमें नहीं लगता आप कंफ्यूज्ड हो। आपका द वे यू टॉक, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। तो आप ये मत बोलिए कि आप कंफ्यूज पर्सनालिटी हो, ऐसा लग नहीं रहा। डिसीजन लेने में वो सबकी लाइफ में होता है, सबकी लाइफ में होता है। कहीं एक पॉइंट आता है कि जहाँ पे यू गेट कंफ्यूज्ड
इवन अगर आप घर के कुछ काम भी कर रहे होते हो वहां पे भी कंफ्यूज हो जाते हो। हम होजरी ले कुछ सामान लेने जाते हैं, कन्फेक्शनरी का, वेजिटेबल्स, वहां पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आज ये लें या ये लें, आज ये बनाएं या ये बनाएं। तो कंफ्यूजन तो कहीं ना कहीं लाइफ में क्रिएट हो ही जाती है। सो दैट इज नॉट द प्रॉब्लम इज, बट आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो यू आर कॉन्फिडेंट विद इट, और वो सेकंड पर्सनालिटीज को दिख जाता है, जैसे हमें दिख रहा है कि यू आर कॉन्फिडेंट, राइट। तो वैसे ही जब आप कुछ प्लान करते हो, कोई डिसीजन लेते हो, तो सेकंड पर्सनालिटीज को दिख जाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो अपने डिसीजन के साथ। एंड वी आर वेरी हैप्पी कि वी आर टॉकिंग टू वन पर्सन जो बहुत कॉन्फिडेंट है। थैंक यू। एंड स्पेशली कॉन्फिडेंट अपने करियर के लिए भी हैं, प्रोफेशन के लिए भी हैं। So, कुछ और प्लान करना चाह रहे हो आप लाइफ में यूट्यूब के अलावा? वही आप ब्रेड एंड बटर बनाना चाहते हो या कुछ और भी साथ में? अभी there is something, but you don't want to disclose right now, huh? Yes, as of now I don't want to, like, but लेकिन after some time वो हो ही जाएगा सबके सामने, because अभी वो प्लानिंग मैं कर रही हूँ। अभी ट्रेलर लॉन्च नहीं हुआ उसका? नहीं, ट्रेलर लॉन्च नहीं हुआ है, तो लेट्स सी क्या उसका रिजल्ट आता है। उसका हम कुछ नाम दे सकते हैं, जैसे कोई मूवी लॉन्च होने वाली होती है, बोलते हैं कमिंग सून, वो मूवी का एक टाइटल नेम होता है, तो ऐसा कुछ नाम देना चाहोगे आप? टाइटल से भी फिर वो थोड़ा सा पता चल ही जाएगा, कोरिलेट हो जाएगा। वी कैन मेंशन कमिंग सून ओनली। अच्छा, कमिंग सून ही रखें, ऊपर टाइटल ना दें अभी? नो नॉट येट। परफेक्टली फाइन। सो अभी तक आपने बताया 7 years जॉब फार्मास्यूटिकल, फिर बीच में सबैटिकल लिया, मैरिज एंड फिर उसके बाद अब आपने प्रोफेशन में, तो कितना डिफिकल्ट था वो डिसीजन लेना, वो पर्टिकुलर डिसीजन लेना? हाउ मेनी डेज यू हैव टेकन टू डिसाइड इट कि मुझे ये करना है? कितना टाइम लगा आपको ये डिसीजन लेने में? एक्चुअली अगर मैं इस चीज को बोलूं कि डिसीजन तो मेरे को जब हम उस ऐसे जब कुछ भी होता है तो इमोशनली बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और उस चीजों में हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो सेम हैपन विद मी ऑल्सो। समटाइम मुझे ऐसा लगता है कि क्या स्ट्रगल करना, क्या करना, नॉर्मल कर ही लेते हैं, लाइफ को नॉर्मल कर लेते हैं, बट मुझे फिर वो फिर मैं घूम फिर के अपने स्विच में आ जाती हूँ कि मुझे वीक नहीं होना है, क्योंकि एज अ ह्यूमन हम मोस्ट ऑफ द टाइम वीक हो जाते हैं, सिचुएशन देखकर हो जाते हैं। यस, तो फिर मैं अपने आप को दोबारा लाइक नेक्स्ट मॉर्निंग में अपने आप को खुद मोटिवेट करती हूँ कि अब मैंने स्टेप उठाया तो मुझे उसे पूरा करना ही है, और वो अगर मैं अभी पीछे हट गई तो फिर तो दोबारा टाइम नहीं आएगा। राइट। तो वो डिसीजंस मैं अभी भी अपने स्ट्रॉन्ग कर ही रही हूँ। राइट। तो लाइक आई एम स्टिल ऑन वर्किंग, इम्प्रूविंग योरसेल्फ। हम सब अपने आप को इम्प्रूव करते हैं डे बाय डे, बिकॉज एंड लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इसलिए हम ये लाइन बोलते हैं। सो मेरा जानने का रीजन ये था कि एट टाइम्स हमें लगता है कि हमने जल्दी डिसीजन ले लिया। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, डिसीजन पेशेंटली लेना चाहिए। तो मेरा इसलिए जानने का ये रीजन था कि आपको कितने टाइम लगा डिसाइड करने पे कि अब जॉब नहीं, अब ये मेरी लाइफ है और ये मेरी जर्नी है। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, वो जो कि बॉम्बे में ही है, वो मेकअप आर्टिस्ट में काफी अच्छा कर रही है। अच्छा। तो मुझे उसने ही एडवाइस किया कि ये ट्राई करते हैं, जो नॉलेज ऑलरेडी है उसी को एनहेंस करते हैं। तो आफ्टर, क्योंकि मैं बहुत जल्दी इस चीज से बाहर आने में स्टार्ट हो गई थी बिकॉज ऑफ माई सन। राइट। क्योंकि मुझे पता था कि अब इसके लिए अगर मुझे करना है तो मुझे ही करना है, तो मैं वो बैठ के रो नहीं सकती या फिर अपने पेन को लेके नहीं बैठ सकती। उस चीज से कुछ नहीं होगा। सो मैंने थोड़ा जल्दी ही स्टार्ट कर दिया था। आई कैन से लाइक विद इन 6 month और 5 month मैंने जल्दी डिसीजन लेना स्टार्ट कर दिया था कि फिर फाइनली डिसाइड हुआ था कि मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट स्टार्ट करती हूँ। So it was not that easy decision, I must say, and taking this decision within 6 months is again, hats off to you. मतलब इतनी जल्दी इतने बड़े पेन से निकलना आसान नहीं होता जो आपने निकल के डिसीजन लिया, and we feel proud of this situation में कि you took very right decision in your career कि हाँ अब अपने बच्चे के लिए करना तो है ही है, तो इतना अच्छा करूँ कि जिससे वो मैं भी इंजॉय करूँ और उसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जा पाऊँ, बिकॉज एक स्किल सेट है ऑलरेडी। एंड आपकी फ्रेंड ने वो टैलेंट आप में देख लिया था, तभी उन्होंने बोला कि आओ मेकअप इंडस्ट्री में एंटर करो फॉर्मली प्रोफेशनली, क्योंकि वो टैलेंट देख चुके थे। तो वी कैन से शी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ योर्स बिकॉज उन्होंने आपका टैलेंट देख लिया था। तो सबके पास ऐसे फ्रेंड्स नहीं होते, यू आर लकी। या नहीं होते सीरियसली। हाँ, सो यू आर लकी कि यू हैव दोस काइंड ऑफ फ्रेंड्स विद यू। एक टंडन मैम एंड सेकंड एंड दिस गर्ल, क्या नाम है इनका? सोमी। सो इन्होंने आप में वो टैलेंट देखा और गाइड किया कि नहीं अब हम तुम्हारा नाम के आगे मेकअप आर्टिस्ट लगेगा। मेकअप आर्टिस्ट, यस राइट। वो काफी ज्यादा उसने को मोटिवेट किया, एंड स्टिल मैं अभी भी जब होता है ऐसा कुछ तो मैं इसी को कॉल करती हूँ कि मेरे को थोड़ा सा लेक्चर दे, थोड़ा सा मोटिवेट कर कि मेरे को फिर से मैं बैक ऑफ द आ जाऊँ उस चीज में जो मैं करना चाह रही हूँ। क्योंकि
होता है कि एज अ ह्यूमन हम काफी बार लो फील लो करते फील हैं। करने लगते हैं। और आज इस वीडियो का और इस सेशन का ऑब्जेक्टिव यही है कि लोग आपसे इन्फ्लुएंस हों, हाँ क्योंकि आपने जो जर्नी देखी है और जैसे अब आप अमर्जिंग वुमेन कंसिडर कर रहे हो एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, बिकॉज काफी लोगों के लिए आइडल बनना इज नॉट अ इजी टास्क। एग्जैक्टली। एंड और इस एज और स्टेज में आके आप डिसीजन बहुत सोच समझ के लेते हो। यू कैन नॉट टेक वेरी लेम डिसीजंस फॉर योर लाइफ जिससे आपको बाद में रिग्रेट हो। एंड यू आर कॉन्फिडेंट, वी आर कॉन्फिडेंट यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। एंड सून हम ये बोल सकते हैं कि जो नेहा मैम से हम मिले थे ना, उनको आज लोग नेहा के नाम से जानते हैं यूट्यूब में कि वो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो विल बी वेरी हैप्पी दैट डे, एंड आई एम श्योर एंड DIDM मेक श्योर कि दैट डे विल कम वेरी सून विद गॉड ग्रेस, राइट? थैंक यू। हाँ। कुछ और बताना चाहें आप? और तो मैं यही बोलूँगी, अगर हम DM की बात करें, डिजिटल मार्केटिंग की, तो ये जो लर्निंग है, ये लाइक चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, ये जो लर्निंग है ये आपके हर स्टेज में ही आपको काम आएगी। अगर आप कुछ भी करते हो, कुछ भी, मैं बोलती हूँ छोटी से छोटी चीज या बड़ी से बड़ी, अगर आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो ये वाली नॉलेज आपको लेना ही चाहिए। जैसा मेरा मानना है, जो अभी मेरे को काम आ रहा है। सो बीइंग अ आर्टिस्ट आल्सो आपको लगता है कि ये स्किल सेट इंपॉर्टेंट है? हाँ। मतलब कुछ लोगों को लगता है ना कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों, ये तो मार्केटिंग वाला काम है, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं फैशन डिजाइनर, मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट है। यस लाइक अगर आप डॉक्टर भी हैं तो अपने को शौक तो आप करोगे ना। और आजकल वो है जो दिखता है वो बिकता है, kind of चीज है। तो इसी के थ्रू आप चीजों को दिखा सकते हो, right. इस नॉलेज के थ्रू, इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप अपने आप को लॉन्च कर सकते हो, जैसे आप इजीली कर पाए। अगर आप ट्रेडिशनल कर रहे होते तो उस समय आपको चैलेंज आता कि इन्वेस्टमेंट चाहिए, पहले मुझे कोई पर्सन हायर करना पड़ता है इस चीज के लिए, तो वो चीज हैंडल करता है इंस्टा या यूट्यूब या फिर कुछ भी जैसी चीजें करना चाहती हूँ, तब ये है कि मैं अपने आप ही कर लेती हूँ। और इवन डिजिटल में आपको हेल्प हुआ ना कि आपने अपना एक चैनल लॉन्च करा, विच इज 24/7 लाइव चैनल आपके लिए, जहाँ पे पीपल कैन कम एंड टॉक टू यू। ऑफलाइन में क्या होता है कि आपने एक स्टोर ओपन किया जिसके लिए आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है स्टार्ट करने के लिए, इसके बाद इंटीरियर एक्सपेंस, एम्प्लॉय एक्सपेंस, और उसमें भी क्या होता है टाइम लिमिट, सुबह 11 बजे ओपन होगा, 8 बजे बंद हो जाएगा, बट वर्चुअली यू आर एक्टिव ऑल टाइम। तो एक अच्छा पॉइंट ये था कि आपको जब डिसीजन लेना था उस समय आपको कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए थी सेटअप करने के लिए, अपने स्किल सेट को लॉन्च करने के लिए। तो उस टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल, क्योंकि स्किल सेट आपके पास था। आपने उसके बेसिस पे अपने आप को फॉर्मली प्रोफेशनल डिजिटल मेकअप आर्टिस्ट लॉन्च किया डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से, और जो अब आपको अभी भी हेल्प कर रहा है, और आपको बनना भी यूट्यूबर है तो उसके लिए तो चाहिए। और अगर नहीं भी बनना होता तब भी चाहिए होता। हाँ तब भी चाहिए, ये एवरी प्रोफेशन में काम आता है। लेकिन अगर कोई कुकिंग का भी वीडियो बना रहा है, लाइक जो हाउसवाइफ है उनके लिए भी बहुत काम आता है किसी भी प्रोफेशन में, चाहे आप कुकिंग में हो, चाहे मेकअप आर्टिस्ट हो, आप कोई कपड़ों का काम कर रहे हो, यू हैव क्लोथिंग बिजनेस, और सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, सेलिंग सर्विसेज ऑनलाइन, यू आर इनटू सर्विस इंडस्ट्री, आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो, आप सर्विस इंडस्ट्री में हो, तो कोई भी सर्विस इंडस्ट्री हो वहाँ पे भी चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट हो वहाँ पे भी चाहिए। तो ये डिजिटल मार्केटिंग किया कब था आपने? ये मैंने किया था वी कैन से 2020 की, लाइक लॉकडाउन से, कोरोना से पहले या बाद में? कोरोना के ही टाइम पे था, या ऐसे ही कुछ टाइम था, लाइक ड्यूरिंग दैट 2020, लाइक आफ्टर माय मैरिज। आफ्टर योर मैरिज मैंने, तो आप मतलब एक और अच्छी बात है, आपने आफ्टर मैरिज भी ये सोचा कि मुझे कुछ सीखना है। तभी नहीं तो कहीं ना कहीं लोग क्या होते हैं आफ्टर मैरिज बहुत फ्री हो जाते हैं कि अब क्या करना है, सीख कर अभी जरूरत ही नहीं है, मैंने क्या कुछ करना है, बट यू टुक अ राइट डिसीजन कि मुझे अपने आप को अपग्रेड करना है। तो उस समय किसी ने गाइड किया था, ये खुद का डिसीजन था कि नहीं मुझे कुछ करना है घर से? नहीं, ये तो था कि मैंने 7 years अराउंड जॉब किया था, तो वो फिर आफ्टर मैरिज कुछ भी नहीं करना, घर पे रहना, तो फिर ऐसा हो गया था कि अब मेरे को कुछ ऐसा चाहिए जो मैं वर्क फ्रॉम होम से कुछ काम कर सकूं। तो इसलिए मैंने डिजिटल वाला लर्निंग लिया था, डिजिटल मार्केटिंग सीखा, डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद तब तो मुझे उतना ये काम आया नहीं था, बट अभी काफी ज्यादा इसका है। मतलब उस समय आपने फॉर्मली अपने आप को लॉन्च नहीं किया? अब आपने फॉर्मली लॉन्च किया तो अब आपको इसकी वैल्यू समझ आ रही है, वैल्यू अब समझ में आई है, अब समझ में आई है। तो उस समय ये था चलो सीख लिया है, कभी कर लिया, टाइम भी नहीं दे पाते होगे क्योंकि मैंने जॉब भी किया था इससे रिलेटेड। अच्छा, वेरी नाइस। 10 months के अराउंड जॉब किया था, मुझे मिला था वर्क फ्रॉम होम इसी में ही। अरे वेरी नाइस। लेकिन फिर मेरा चेंज हो गया कि माइंड चेंज हो गया। तो इसका हम ये नहीं कह सकते कि उस समय काम नहीं आया था, काम तो आया था, काम तो आया था। तो उसमें आपका प्रोफेशन क्या था, एग्जैक्ट प्रोफाइल क्या थी उसमें? ऐसे डिजिटल मार्केटिंग ही था, डिजिटल मार्केटिंग ही था। लेकिन तब लाइक इस इंडस्ट्री में मैं एज अ फ्रेशर ही, उन्होंने असिस्टेंट ही बोल सकती हूँ मैं।
सो असिस्टेंट डिजिटल मार्केटियर या डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव कह सकते हो, आप कह सकते हो। तो वो 10 मंथ्स आपने किया, लाइव प्रोजेक्ट्स पर एक्सपीरियंस भी लिया आपने, तो शायद वो 10 महीने का एक्सपीरियंस आज आपके काम आया लर्निंग के साथ साथ। बिकॉज एजुकेशन सिर्फ थ्योरेटिकल इतने काम नहीं आती जब तक प्रैक्टिकल ना हो, तो आपने दोनों एक्सपोजर ले लिया था, प्रैक्टिकल का और लाइव प्रोजेक्ट्स का, सो दैट मेजरली हेल्प यू कि आज आप एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बन सके और आगे और भी सक्सीड करना है अभी। एग्जैक्टली सो वेरी नाइस। और आपकी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड? Qualification, I masters in sociology. That was also completely different. Career से कहीं से भी connection typical zigzag चलता आ रहे हैं। Pharmaceutical भी हो गया। हाँ। और education बोल सकती हूँ मैं। Starting में BPO से ही हुआ था। अच्छा, कॉल सेंटर में भी आपने वर्क किया, वेरी नाइस। बनना मुझे होस्टेस था। अरे वेरी नाइस। सब कितने लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं डिफरेंट प्रोफेशन के। होस्टेस था बट वो हो नहीं पाया था क्योंकि फेस तो हम ऐसा करते हैं, हम 12th से स्टार्ट करते हैं। 12th किस में किया आपने? 12th मेरा फैशन डिजाइनर। हाँ, फैशन डिजाइनिंग भी है अभी लिस्ट में। अच्छा, हाँ, वो 12th में उसमें हुआ था। देन इंटरेस्ट उसमें बिल्कुल नहीं था मेरे को, वो सिर्फ उस टाइम पे हो गया था। राइट, साथ साथ करते थे आप कुछ फैशन में रिलेटेड? फिर उसमें स्कूल में सब्जेक्ट था। अच्छा, स्कूल में सब्जेक्ट था फैशन का? हाँ। और ग्रेजुएशन किसमें करी फिर? ग्रेजुएशन सिंपल पॉल साइंस में। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस में किया। और मास्टर्स कर लिया आपने सोशियोलॉजी में। सो हम ये कह सकते हैं वी आर टॉकिंग टू अ मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी जिनके पास नॉलेज हर चीज की है। फैशन भी, पॉलिटिकल साइंस, सब कुछ किया है। वो मूवी देखी होगी ना आमिर खान का, जो अभी रिसेंटली आया है, जिसमें वो रूपा गारमेंट्स होता है, अंडर गारमेंट समथिंग, उसका कुछ वो मूवी प्रमोशन करते हैं उसमें। तो उसमें जो आमिर खान होता है वो सब कुछ करता है, किसी एक पे फोकस नहीं करता है, अपनी लाइफ में सारे एक्सपीरियंस लेता है कि कभी भी कुछ भी काम आ सकता है, तो लाइफ में कभी वो गिरेगा नहीं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे सीन है, लाइक हॉस्टेस बनना था तो एक्ने की वजह से नहीं हो पाया, उस टाइम पे फेस बहुत ज्यादा खराब था। उसके बाद में फिर मैंने बीपीए में जॉब किया, देन फार्मास्यूटिकल में मेरा हो गया था, उसमें फिर मैंने कंटिन्यू किया था। फिर डिजिटल मार्केटिंग में आ गई थी मैं, अब मैं यहाँ पे हूँ। अभी इसमें अभी भी हम कह सकते हैं कि एक डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा स्किल सेट था जो आपके साथ अभी तक लिंक्ड है। हाँ, अभी तक लिंक्ड है। अभी तक जो भी आपने एजुकेशन की थी वो जिगजैग हो गई, काम नहीं, मतलब टच में नहीं आ पाए। अगर हम फैशन डिजाइनिंग करें तो वो भी आपकी पर्सनल लाइफ में, मतलब पर्सनल लाइफ में बट प्रोफेशनली लिंक्ड नहीं है, पर्सनल लाइफ में लिंक्ड है। अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज हो जाता है अगर आपने फैशन पढ़ा होता है, तो यू अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स, यू अंडरस्टैंड द फैशन। बट पॉलिटिकल साइंस वो अभी लाइफ के साथ लिंक नहीं होगी। नहीं। और जो मास्टर्स करी हमने वो भी तो नहीं, वो भी लिंक नहीं। ऐसे मेरे को लगता है कि ऐसी स्टडीज कुछ काम भी आती है, पता नहीं क्यों हमारे सब्जेक्ट्स में इतनी ज्यादा डिफिकल्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स के लिए, बहुत डिफिकल्ट करते हैं। बट फिर आपने जब डिजिटल मार्केटिंग करा तो वो लिंक हो गया, और जो कि लाइफ टाइम भी रहने वाला है, बिकॉज कुछ भी मैंने एवरीथिंग इज डिजिटली, तो लाइफ में तो कहीं ना कहीं टच में रहता ही है आपके, क्योंकि अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हो आपको डिजिटली आना ही पड़ेगा। तो ये एक ऐसा स्किल सेट है जो आपकी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, और लोग आपको हमेशा सर्च करते रहेंगे। हाँ, हमेशा सर्च करेंगे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके बारे में हमेशा लिखा रहेगा कि नेहा मैम है जो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है, एंड यूट्यूबर भी हैं। ये भी बोलना है हमें, राइट? सॉरी मैं वो लाइन भूल गया था, यूट्यूबर भी हैं। सो और कुछ आप शेयर करना चाहें लाइफ के लिए और वुमेन्स के लिए? क्या आप कोई स्टेटमेंट देना चाहेंगे या कुछ उनको मैसेज कन्वे करना चाहेंगे जो उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो डिसीजंस लिखने में, करियर में? ओके, लाइक फॉर वुमेन्स तो मैं यही बोलना चाहूँगी, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि लाइक बी पैशनेट, अपने पैशन को फॉलो करो। स्टेज सो वन डे यू विल ग्रो। हाँ, वन डे यू विल डेफिनेटली ग्रो। डेफिनेटली ग्रो। तो अपने पैशन जो आपका है उसको कभी डिस्टर्ब मत करो। यस। तो डोंट स्टॉप योरसेल्फ। अगर जो आपका पैशन है उसको फॉलो करो, चाहे जो भी एज है, कुछ भी स्टेज है आपकी, उसको फॉलो करो, उससे मत हटो। चाहे आप 30 years old हो, चाहे आप 40 years old हो, चाहे आप 20 years भी हो, बट बी पैशनेट, फॉलो योर ड्रीम्स, हम ये कह सकते हैं, फॉलो योर पैशन, एंड दैट डे विल कम वेरी सून व्हेन यू विल बी टॉप ऑफ द वर्ल्ड। है ना? तो दिन जरूर आएगा। हाँ, दैट डे विल वेरी श्योरली कम, ये हम कह सकते हैं। एंड यही हमारा ऑब्जेक्टिव है DIDM का, कि हम नेक्स्ट फ्यू डेज आपके जैसी सक्सेस स्टोरीज लोगों को दिखाएं कि डोंट बाउंड योरसेल्फ। सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल, दे शुड कम इन फ्रंट। जैसे आज आप सामने आए, आपने अपनी जर्नी शेयर करी, आई एम श्योर काफी लोग आपकी जर्नी के साथ लिंक्ड होंगे, अपने आप को फील करेंगे, जो आपने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी कि कैसे आपकी लाइफ जिगजैग रही। और उन लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि
डिसीजन लेना पड़ता है। आप डिपेंडेंसी नहीं रख सकते किसी के ऊपर, Yeah. आपको डिसीजन लेना पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे आज लीजिए कल लीजिए। हाँ. और सूनर दी बेटर, जितनी Yes. जल्दी डिसीजन लेंगे उतनी जल्दी आप एक राइट डायरेक्शन में, राइट पाथ में जा सकते हैं। Yeah. राइट। सो वी हैव अनदर सक्सेस स्टोरी ऑल्सो, शायद आप उनसे मिले हो मैम से ऑलरेडी। Yes, yes. सो आप उनके बारे में कुछ बताना चाहें? मिले आप अभी उनसे? यस, मैं उनसे फर्स्ट टाइम ही मिली हूँ, लाइक बट हाँ ये है कि जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको खुद फील होगा लाइक शी इज़ ऑल्सो अ वेरी कॉन्फिडेंट वुमेन जो आपको इंस्पायर कर सकती है काफ़ी वेज में। काफी ways तो मैं में। डिस्क्लोज तो कुछ चीज़ें नहीं करूँगी उनके, आप And her डायरेक्टली name उनसे is? बात करो। आप प्लीज अनाउंस करिए उनका नाम, क्या नाम है उनका? एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम ही मिली हूँ, so अच्छा। नाम मेरा उतना भी You're missing out. like But मेरे को ये पता है कि she is a choreographer, yes, dancer. and she is a young talent, young talent, and she decided this thing कि मुझे वेट नहीं करना, हाँ कि मुझे अपना स्किल सेट को सूनर दी बेटर, जो हम लाइन यूज कर रहे थे, Yes, कि yes. जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लॉन्च करना है, लोगों के सामने लेकर आना है। एंड आई एम श्योर शी वुड बी दी अमेजिंग एग्जाम्पल जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं, हाँ. या जो अभी अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं और अर्ली एज के हैं। तो शी गोना टेल अस कि कैसे उन्होंने अपने जो एक हिडन टैलेंट, अगेन इनबिल्ट टैलेंट और गॉड गिफ्टेड स्किल्स, डांसिंग स्किल्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म से आगे लेकर आकर और लोगों को, बहुत लोगों को इंस्पायर किया कि डोंट वेट कि टाइम आएगा, डोंट वेट कि अभी मैं छोटी हूँ, मेरी अभी एज नहीं है, या मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अपने ड्रीम्स फॉलो करूँगी या अपने पैशन फॉलो करूँगी। एंड शी इज़ अमेजिंग एग्जाम्पल फॉर यंग एज पीपल, टीन एज पीपल, राइट? So we really want to invite her and request her to join with us. So if it's possible, ma'am, please come. We are waiting for you. Neha and me are waiting for you. Please come. Yeah.